Today day starts with Nilay's call from last evening. Okay. First of all, I would like to congratulate Nilay for his new opportunity. Okay. He is with Carinfield in a batch 40. Okay. And work with the industry for more than 8+ years as an industrial design and development, assembly, tooling, picture designer, and he is one of the person like you. He is the Carinfield student. Because of his experience and salaries, requirements and all, okay, so he was trying for 2-3 opportunities, and we like to happy to announce that recently he plus in L&T. How much amount of increment he will explain, what impact he has been observed because of the serious learning. He also be a very passionate cricketer. I used to perform all the matches whenever there is in Ahmedabad. There is a match in Ahmedabad. Okay, I used to be live from the village, from the Nilay's art, because he used to be have some pics as well as videos which were made at Narendra Modi Stadium. He stayed in Ahmedabad only. He completed his entire course of Carinfield in an online mode. Only I think PDM or sessions. Offline. Yeah, he came for offline. And the proud moment for us that to meet me and ma'am and Carinfield. He traveled from Ahmedabad to Pune for only that purpose, along with to take the blessings of दगडूशेठ हलवाई गणपती. सो बाप्पाच्या दर्शनाने आपल्याला भेटायला तो खास अहमदाबादहून आलाय. And now he's traveling again back at today 5 p.m. to Ahmedabad and ready to join L&T. Okay, L&T Ahmedabad again. So I think 30th was the last day, I think. Third, yeah. So I would like to welcome Nilay. Okay, I would like him to interact with you all, so that whatever question in your mind, because he observed as a fresher, as a mid-level, even I know that when he is joining, he wants to join Carinfield. I was driving to my native place. Yes. Yeah, so we discussed almost for 1 hour. Yes, more than 1 hour. Okay. म्हणजे initially I thought that का देतोय admission? एवढा क्वेश्चन विचारतोय वगैरे वगैरे, आणि बिकॉज ही इज अ महाराष्ट्रीयन ओनली, सो ही इज फ्रॉम नागपूर. सो म्हणजे एकदम कुठले क्वेश्चन्स, आणि हे चंद्रादित्य 36 का स्टूडेंट था. ही ऑल्सो हैव अ सिमिलर केस स्टडी. उसको भी 8-9 साल का टाटा मोटर्स का, टाटा टेक्नोलॉजीज का एक्सपीरियंस था. उन्होंने भी कैरिनफील्ड का कोर्स करके एविएशन में शिफ्ट हुआ था. तो फिर he has discussed many times with Aditya वगैरह. So he has lot of things to talk. Okay, and we already in the nature of talkative. So I would like to welcome him with a small token of appreciation from Carinfield, as well as on commitment of 3 months of assignment. We would like to release the certificate also, because it's very difficult for him to carry later also. So almost I think 70% he already completed the assignment. Me basically Maharashtra guy. I think सगळे महाराष्ट्राचे आहेत. So I am born in Nagpur and I am brought up in Ahmedabad. I did my whole schooling from Ahmedabad only. Did my bachelor's BTech mechanical from Indus University. When I graduated, I started as my career from QA. In fact, you also don't know, sir. Yeah. 2 months I did a job in QA in Electrosum Group. They were having their subsidiary company, Firefly Batteries Private Limited. I worked over there for 2 months in the QA department. Then, fortunately, I got opportunity to work in production engineering. So I shifted from production engineering in Sierra Tapes Limited, which is a group of Imami. So I worked over there for almost 2 years. In fact, I came there with an opportunity to work in AutoCAD. When I saw AutoCAD, I was very much excited that I will be making at least some 2D drawings and maintaining my portfolio in AutoCAD as well. So I started my journey from that AutoCAD, even though I was working in production engineering.
Then day by day, when I used to make 2D drawings, my interest goes on increasing in the design, right? Then I thought I should learn various sorts of softwares. In fact, I started with AutoCAD. I was knowing AutoCAD. I did my training from Courier CAD Center from Ahmedabad only. I passed out Autodesk exam as well. Then I got opportunity to work with US MNC, Milacron India Private Limited, which I left. Joined Milacron India as an industrial engineer. Then I got promoted to senior engineer, and then my last position was deputy lead, where I was designing toolings and fixtures over there for the assembly of injection molding machineries. So जब मैं मिलेक्रॉन में ज्वाइन हुआ तब मुझे क्रियो के बारे में कुछ भी नॉलेज नहीं था, लेकिन फॉर्चुनेटली ऐसा हुआ कि जिस बंदे ने छोड़ा था उस पीसी में ऑलरेडी क्रियो इंस्टॉल्ड था. ये बहुत लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं मिलता है. क्रियो उसमें इंस्टॉल्ड था और क्रियो का लाइसेंस भी सर को मालूम होगा. आई थिंक ईयरली पर स्टूडेंट 5 से 6 लाख का लाइसेंस उसमें लगता है. तो जब उसमें क्रियो मैंने देखा तब मुझे क्रियो के बारे में और इंटरेस्ट आने लगा. डे बाय डे जब मैंने क्रियो यूज किया तो उसमें मेरा और इंटरेस्ट जगने लगा. बाद में फिर ऐसा लगा कि जस्ट ओनली लर्निंग सॉफ्टवेयर इज नॉट इम्पोर्टेंट. यू नीड टू ग्रो एंड एक्सपोज योरसेल्फ टू द टेक्निकल रिलेटेड थिंग्स एज वेल. फिर मेरा इंटरेस्ट और डिजाइन रिलेटेड और उसमें ग्रो हुआ. फिर मैंने और डिटेल में और मशीनरी रिलेटेड जाना. फिर मैंने विंडचिल, I came across with the Windchill software, PDM, which is a product data management tool like SolidWorks PDM. तो उसमें मैंने मिलेक्रॉन में 3 साल और 8 साल काम किया. उसके बाद मैंने छोड़ा बॉश एक्सवर्थ में मैं गया. मैंने बॉश एक्सवर्थ में इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग में काम किया 5 महीने. फिर मैं गया, फिर से रिजॉइन हुआ मिलेक्रॉन इंडिया में. तो मुझे एक नया पोर्टफोलियो सा डिजाइन मतलब दिया गया था. पोर्टफोलियो, वी मेक injection molding machineries and we ship it to our parent company Cincinnati. We ship those whole machines in the metal box container. So I used to design that metal skids जहाँ पे मशीन माउंट हो करके कंटेनर के अंदर कंटेनराइज करके वो शिप किया जाता है. तो वहाँ से मुझे और फैब्रिकेशन रिलेटेड नॉलेज मिला मुझे काफी. फैब्रिकेशन बेसिकली चीज क्या होती है, फैब्रिकेशन में कितने टाइप्स के फैब्रिकेशन होते हैं, कितने टाइप के वेल्डिंग जॉइंट्स होते हैं, वेल्डिंग के प्रोसेसेस कितने होते हैं, वेल्डिंग के टाइप्स कितने होते हैं, प्रॉपर वेल्डिंग टेक्निक्स क्या है, कौन से टाइप का वेल्डिंग कब यूज करना है. और उसके साथ मुझे वो जो मैंने डिजाइन बनाया वो विंचिल में मुझे डेटा मैनेजमेंट का एक टूल मिला विंचिल. तो वो मेरा आईडी उसमें क्रिएट किया गया और उसमें मैंने ड्राइंग वगैरह सबमिट किया. मैंने बहुत सारे इंस्टीट्यूट ढूंढे पुणे में, जो टेक एंड एजुकेट करके है, कैड कैम गुरु है. बाद में फिर कैड इनफील्ड टेक्नोलॉजीज करके एक बहुत अच्छा नाम मुझे मिला फॉर्चुनेटली. और मैंने फर्स्ट कांटेक्ट आई थिंक मैंने इंक्वायरी किया था ऑनलाइन. और तब आई देन आई केम अक्रॉस विद द मैडम एंड मैडम एंड सर वर ट्रैवलिंग. आई वाज कॉलिंग कंटिन्यूअसली टू देम एज आई वाज वेरी कीन एंड पैशनेट एंड ऑप्टिमिस्टिक टू लर्न डिजाइन रिलेटेड थिंग्स. तो सर ने फिर भी मुझे अच्छा टाइम दिया. सर ट्रैवल कर रहे थे तो सर ने मुझे आई थिंक 1 घंटा फोन पे बात किया. तो मैंने मेरा उनको इम्पोर्टेंट था, नया गाड़ी चला रहा था दूर तरफ. उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ. अरे नहीं बिल्कुल नहीं. तो मैं बहुत ऑप्टिमिस्टिक था क्योंकि उस टाइम पे मुझे इंजीनियरिंग का नॉलेज वगैरह था, लेकिन जो डिजाइन कैलकुलेशंस और जो भी चीजें इंजीनियरिंग की टेक्निक्स है वो इम्प्लीमेंट कैसे करनी है वो सर ने मुझे प्रॉपर गाइड किया. तो मैं क्या करता था, एक मार्केट ट्रेंड में सर्वे स्टडी करता था कि मेरा नॉलेज क्या कहाँ पे है और मार्केट अभी कहाँ पे है. तो जो ये गैप मुझे फुलफिल करना है वो मुझे ऐसा उस टाइम पे लगा, जो सर ने मुझे एक्सप्लेन किया वो कैड इनफील्ड से पूरा हो सकता है. फिर मैं यहाँ पे उनको पर्सनली मिलने के लिए आया. देन आई ज्वाइन दिस इन अ D40 बैच. तो मेरा आई थिंक सजेशन और एक जो गाइडेंस आपके लिए यही है कि अभी आई थिंक सब लोगों ने पास आउट कर लिया या कर रहे होंगे अभी, ठीक है. तो अभी आपका जो इंटेंट है सीखने का, अभी जस्ट अब एक मेन चीज होती है, डिसिप्लिन होता है. मैं सर को मालूम है, मैं क्रिकेट को बहुत ज्यादा फॉलो करता हूँ. तो विराट कोहली को आप सब लोग जानते होंगे. विराट कोहली ने एक कॉन्फ्रेंस में ऐसा बोला हुआ है कि जो भी आप चीजें करो वो एक प्रॉपर इंटेंट से करो, ठीक है, प्रॉपर मेहनत से करो और अच्छे तरीके से करो, विदाउट एनी फुलफिलिंग एंड
विदाउट एनी बैड इंटेंट। अगर आपका इंटेंट अच्छा होगा, तरीका अच्छा होगा, लोग डिसिप्लिन रहोगे तो बहुत कुछ आगे जा सकते हो। बेसिकली जब मैं इंजीनियरिंग पास आउट किया तो मुझे गाइडेंस के लिए कोई नहीं था, लेकिन मैं सीखते गया। आज मुझे मालूम पड़ा कि मुझे अभी 8 साल के बाद मुझे मालूम पड़ रहा है कि दिस इज माई फील्ड एंड डिजाइन। ये पर्टिकुलरली डिजाइन एक ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें एआई को आने में टाइम लगेगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को आने में टाइम लगेगा। बेसिकली आपको मालूम होगा कि कितने डिपार्टमेंट रहते हैं। सेल्स डिपार्टमेंट रहता है, ठीक है, कस्टमर का ऑर्डर पहले सेल्स के साथ आता है, सेल्स से आता है वो प्रोडक्शन प्लानिंग परचेस के तरफ जाता है, डिजाइनिंग तो उसके पहले का स्टेज है, ठीक है। ये 3-4 डिपार्टमेंट है जो है प्रोडक्शन, इनफैक्ट क्यूसी। तो डिजाइन एक ऐसा फील्ड है जिसमें एआई को आने में टाइम लगेगा, जिसमें आप एआई को ऐसा नहीं बोल सकते कि मुझे मेरा इतना लोड है, इतना ये एप्लीकेशन है तो आप डिजाइन करके दो। अल्टीमेटली कहाँ से फेल होगा वो ह्यूमन थिंकिंग ही मालूम कर सकता है कि कहाँ से डिजाइन क्या फेल हो सकता है। तो अभी तो आपका स्टार्टिंग है, आप सही जगह पे हो सब लोग, जो भी आप अभी कर रहे हो। सर के पास काफी अच्छा नॉलेज है, जो थियरेटिकल से प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन कैसे होता है, डिजाइन कैलकुलेशंस कहाँ यूज करने, कैसे यूज करने हैं, वो सर बहुत अच्छी तरीके से पता है। अभी मैं ये प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस की बात करता हूँ कि मैंने जो इंटरव्यूज दिए हैं, मैंने मेरे लाइफ में मेरा ये जो L&D होगा वो 31st या 32nd इंटरव्यू होगा मेरे करियर का, ये 8 साल के करियर का। तो भले मैंने 5 कंपनी चेंज की है। मेरी फर्स्ट कंपनी थी इलेक्ट्रोथम थी, दूसरी कंपनी ये थी मेरी CRI टिप्स लिमिटेड विच इज अ ग्रुप ऑफ इमामी। मेरा तीसरा कंपनी मिलाक्रॉन था, चौथा बॉश एक्सरोथ था, और 5वां फिर से मिलाक्रॉन था, और ये छठा L&T था, ठीक है। तो आप सोचो कि 32nd कंपनी में इंटरव्यू देने के बाद मैंने खाली 6 कंपनी में काम किया है। तो इसका ये मीनिंग नहीं है कि मैं ज्यादा फेल हुआ होऊंगा, लेकिन फेलियर से आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है, ठीक है। तो डिसिप्लिन एक बहुत बड़ी चीज है। ऐसा नहीं है कि आप क्लास में आए, अपने लेक्चर अटेंड किया, फिजिकली इधर प्रेजेंट हो, मेंटली नहीं कहीं पे और हो। तो मैंने जैसे आपको विराट कोहली का स्टेटमेंट बताया कि जो भी काम करे वो सही इंटेंट से और पैशनेट होकर करो, और ऑप्टिमिस्टिज्म और एक लर्निंग एटीट्यूड रहना चाहिए, ठीक है। तो ये एक चीजें है सीखने लायक। और बाकी अगर मैं टेक्निकली बात करूँ तो सर ने काफी अच्छा नॉलेज दिया हुआ है, पहले किया होगा, लेकिन जितना डिटेल में सर ने मुझे सिखाया सॉलिडवर्क्स, मुझे इतना मालूम ही नहीं था। और इंडस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू, मार्केट में क्या चल रहा है, हम कहाँ पे है, और हमारा और मार्केट के बीच में क्या गैप है, उस पर आपको काम करने की जरूरत है। बाकी मैं 8 साल के बाद मैं आज डिजाइन में हूँ, तो आई फील माई सेल्फ प्राउड एंड आई थैंक टू मैडम एंड सर दैट दे provided me admission and to provide me an opportunity to learn design course in their CAD field technologies. Any question, doubts, कुछ पूछना चाहते हो? आपका कुछ अगर डाउट्स वगैरह है कि करियर में क्या करना है, अभी क्या कब कर रहे हो, आपका गोल क्या है। हाँ, एक चीज मैं बोलना रह गया, ऐसा मत सोचना कि मुझे जो डिपार्टमेंट में अभी मिल रहा है कोर्स करने के बाद मैं वो डिपार्टमेंट में जाऊंगा। अगर वो थिंकिंग से आप अगर कोर्स कर रहे हो तो सॉरी टू से दैट यू शुड कंप्लीटली ऑप्ट आउट ऑफ दिस कोर्स। आपका इंटेंट कहाँ पे और आपका गोल कहाँ पे है। अगर आपका जो गोल है, अगर वो आपको लगता है कि मुझे यहाँ से फुलफिलमेंट हो रहा है, अगर मैं कुछ यहाँ से सीख के जाऊंगा, ठीक है। सर ने मुझे काफी चीजें बताई है कि ऐसा नहीं कि कोर्स कर लिया बाद में बुक को बंद करके साइड में रख दिया। वो मेहनत उसके पीछे लगती है। मेरा जो जॉब का टाइमिंग है वो 9 से 6 रहता था, तो मैं 9 से 6 करने के बाद मैं 6-7 बजे घर पे आता, जिम करता था। जिम करने के बाद मैं 8-8:30 बजे सर का लेक्चर अटेंड करता था, 10 बजे तक उस पर प्रैक्टिस करता था। इवन दो मैंने 60% काम किया है अभी असाइनमेंट में, लेकिन वो जो मुझे हेल्पफुल मिला वो एक काफी अच्छा एक्सपोजर था। हाउ यू कंपेयर सॉफ्टवेयर वर्सेस डिजाइन कैलकुलेशन, कितना इम्पैक्टफुल रहा ये जर्नी? बेसिकली डिजाइन कैलकुलेशन वाज I would give percentage 80 to 90% rather than focusing on the software pieces. Software is just a tool. In market there are many types of softwares are available, starting from the AutoCAD Inventor, then Creo, CATIA, SolidWorks, right? So software is basically a tool. Line command जो AutoCAD में, वही Creo में, वही SolidWorks में, वही CATIA में,
लेकिन कैलकुलेशन आपको सॉलिडवर्क्स ना तो करके बताएगा, ना व्यू करके बताएगा, कोई भी करके बताएगा। कैलकुलेशन बेसिकली जो स्टार्ट होता है वो इंजीनियरिंग से स्टार्ट होता है, वो डिजाइन कैलकुलेशन जो आपको डे बाय डे रीडिंग करके, डे बाय डे प्रैक्टिस करके। इनफैक्ट मैं तो आपको ऐसा सजेशन करूंगा कि आपको एक प्रॉब्लम उठाओ कि ये कोई स्ट्रक्चर है, ये जो आपको पीछे विंडो दिख रहा है, तो वो विंडो में वही मटेरियल क्यों सिलेक्ट किया गया है, वो रॉडी क्यों सिलेक्ट किया गया है, उसका मटेरियल कौन सा है, वो आप उसके बारे में सोचना चालू करोगे और वैसा उसका वेल्डिंग कौन सा टाइप का है, तो वहां से आपका क्रिटिकल थिंकिंग इंप्रूव होते जाएगा। Any questions? Being an fresher, जैसे हमारा being an fresher जब हम जाएंगे, जब डिजाइन इंजीनियर में जाएंगे तो कैसा अप्रोच होना चाहिए in order to grow in our design career? मेन अप्रोच जो मैंने बोला कि लर्निंग एटीट्यूड सबसे मेन इंपॉर्टेंट है। आपको आप ऐसा जाओगे कंपनी में, बोले आप एज ए जीईटी जाओगे, ट्रेनिंग जाओगे, आपको अगर आपका इमीडिएट मैनेजर बोलता है कि ये पूरी ड्राइंग इसको 3D में कन्वर्ट करो, तो आपका एटीट्यूड उसमें सीखने का होना चाहिए, ना करके कि आप उसको सामने से बोलो कि सर ये मुझे डिजाइन में लिया था, मुझे क्यों ड्राफ्टिंग दे रहे हो। ठीक है, क्योंकि मैंने भी जब चालू किया तब मैंने ऑटोकैड में जो बॉल पेन का जो टिप आता है ना, टिप, वो मैंने ड्राफ्टिंग वहां से चालू किया। और अभी मैं आज मुझे इतने सारे सॉफ्टवेयर मालूम है डिजाइन कैलकुलेशन के साथ। ठीक है, और एक चीज याद रखना कि कभी भी इंटरव्यू में आप जाओ, मेरा तो 30 सेकंड कंपनी था ये, मुझे पहले हैबिट ऐसा था कि मैं क्या करता था, मैं जो भी कंपनी में जाता था उसके क्वेश्चन दिमाग में रखता था, डायरी में नोट करके रखता था, और मैंने उसका क्या आंसर दिया है वो मैं लिख के रखता था, और बाद में मैं नेट पे सर्च करके मैंने सही दिया कि नहीं दिया। काफी सारी जगह पे मेरा 10% ओके था, काफी सारी जगह पे 80% भी ओके था, और उसमें सिलेक्शन नहीं होता था। काफी जगह पे 60% भी ओके था, लेकिन इंटरव्यूअर क्या देखता है, लर्निंग एटीट्यूड देखता है, हाउ यू आर ट्राइंग टू कम्युनिकेट। आप जो चीज उसको, वो जो पूछ रहा है, आप उसको कितने पेशेंसली आंसर करते हो, कितने पॉजिटिव वे में आंसर करते हो, ये सब चीजें देखी जाती है। और सॉफ्टवेयर 5 to 7 years तक यूज करोगे, उसके बाद आता है मैन मैनेजमेंट लेवल। मुझे मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है, मुझे 70% सब मैन मैनेजमेंट लेवल पे ही पूछा गया है। बेसिकली मैंने हमारी लास्ट कंपनी एक एसपीएम हमने डेवलप किया था, ड्रिलिंग टैपिंग एसपीएम। तो मुझे जो भी एलएनटी है ट्रेलवर्क करके, उन्होंने मुझे पूछा कि ये जो आपने प्रोजेक्ट किया, टेक्निकल तो छोड़, आपको टेक्निकल आता होगा तो ही आपने ये प्रोजेक्ट किया होगा, तो इसमें आपको क्या क्या प्रॉब्लम्स आई थी। टीम वर्क रहता है, तो टीम रहता है, 4 से 5 लोगों का टीम रहता है। ठीक है, अभी जहाँ पे माइंड अलग अलग है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट आने वाला है। एक बंदा बोल रहा है कि नहीं मुझे ये मटेरियल चाहिए, दूसरा बंदा बोल रहा है कि मुझे इस टाइप का क्लैंपिंग चाहिए, तीसरा बंदा बोल रहा है कि मुझे मैकेनिकल चाहिए, चौथा बंदा बोल रहा है कि मुझे न्यूमेटिक क्लैंपिंग चाहिए। तो मुझे यही सब पूछा जाता है कि आप इन सब चीजों को कैसे ओवरकम करते हो, प्रॉब्लम आता है तो क्या करते हो। और मशीन तो है एसपीएम ऐसा नहीं है कि फर्स्ट टाइम में इम्प्लीमेंट हो जाने वाला है। एसपीएम ऐसी चीज है कि वो उसको ट्रायल एंड एरर मेथड भी लगता है। ये जो हमारा मशीन हमने डेवलप किया था उसमें 8 महीने लगे थे परफेक्टली पास होने में। तो मैन मैनेजमेंट लेवल के क्वेश्चंस काफी सारे आते हैं एक सर्टेन एक्सपीरियंस के बाद। अभी तो आप जाओगे तो आपको इंजीनियरिंग रिलेटेड ही क्वेश्चंस पूछेंगे। और बेसिकली एक मैं आपको मार्केट में क्या रहता है कि बेसिक क्वेश्चन पूछा जाता है कि इंट्रोड्यूस योरसेल्फ, स्टार्टिंग फ्रॉम इंटरव्यू स्टार्ट फ्रॉम देयर ओनली, राइट? rather than saying your name, rather than saying your educational details, you have already mentioned your education details in the resume, right? So it's a better introduction as well, right? So rather than saying your name, family background, you try to say that what is your goal, why you are here, why you are joining that company, what is your short term goal, what is your long term goal, what you can put in yourself as an engineer to the company, that you have to mention in the introduction rather than saying your name about your family background. Any other? जैसे कि डिजाइन कैलकुलेशंस मेंशन हो चुका है, इम्पोर्टेंट है बीइंग अ डिजाइन इंजीनियर। वैसे ही हम लोग पोर्टफोलियो कैसे मेंटेन कर सकते हैं? पोर्टफोलियो इन द सेंस योर डिजाइन पोर्टफोलियो जो हम लिंक्डइन के ऊपर जो अपलोड करते हैं, तो वो कैसे मेंटेन करें ताकि हमारा एक रिक्रूटर जो है उस पर इम्पैक्ट पड़े, जाकि बाकी डिजाइनर से हम स्टैंड आउट कर सकें।
तो स्टार्टिंग में पोर्टफोलियो की बात करो, आपने कॉलेज में जो भी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज की है वो आप तो पहले नोट डाउन करके रखो आपने क्या क्या एक्टिविटीज की। अगर टेक्निकल है तो प्रोजेक्ट पॉइंट ऑफ व्यू उसे प्रोजेक्ट को आपने आइडेंटिफाई कैसे करा, प्रोजेक्ट में आपके कितने टीम मेंबर्स थे। टीम मेंबर्स ऐसा तो नहीं है कि सिंगल बंदा हर एक पूरा प्रोजेक्ट कर देगा, तो आपका उसमें रोल क्या था। अगर आपका उसमें रोल खाली डिजाइनिंग था तो आप उसमें डिजाइनिंग का डाल दो कि मैंने ये मटेरियल सिलेक्शन, ये कैलकुलेशन, ठीक है, ये वॉट आउट सिलेक्शन किया, बेरिंग सिलेक्शन किया, मोटर सिलेक्शन किया, फैब्रिकेशन किया, तो आपने उसमें स्ट्रक्चर कौन सा सिलेक्ट किया, ये सब चीजें आप कर सकते हो। बाद में कंपनी में जाने के बाद स्टार्टिंग से लेकर के हैबिट रखना कि नोट डाउन करो आप चीजें। मैं नोट डाउन करता था, मैं जब प्रोडक्शन इंजीनियर में काम करता था, मैं हर एक डे टू डे एक्टिविटी सब नोट डाउन करता था। इवन मैंने 11 से 12 तो ये काम किया, मैं पहले हाथ से मशीन सेटअप करता था तो वो मैं लिख के रखता था, और एज अ प्रोडक्शन इंजीनियर क्या प्रॉब्लम आता था वो भी मैं लिख के रखता था, और वो ऑपरेटर से डिस्कस करता था। ऐसा भी मत समझना कि आप डिजाइन इंजीनियर हो तो यू आर लिमिटेड टू योर ओनली वर्क स्पेस, physical workspace I'm talking about. You need to think from the practical point of view. Let's say if you are working in some corporate office and your factory is in somewhere else in Germany, so you need to think from the design point of view as well. और जब आपने डिजाइन कोई भी चीज कर दिया है तो उसको एक एनालाइज करने का ट्राई करो कि ये चीज कैसे फेल हो सकती है रादर देन कैसे काम करेगी। अगर आप कैसे फेल हो सकती है अगर उस पर आपने काम कर लिया तो अल्टीमेटली वो डिजाइन सक्सेस होने वाला है। तो ऑलवेज थिंक फ्रॉम द ऑपरेटिंग पॉइंट ऑफ व्यू, वो कैसे काम करेगी, लोगों को उसमें क्या दिक्कत आ सकती है। तो अगर आप उस चीज पे ज्यादा फोकस करोगे तो एक अच्छा बात रहेगा आपके लिए। इंक्रीमेंट के बारे में अगर मैं बात करूं तो स्टार्टिंग में मेरा फोकस टुवर्ड्स मनी बहुत ज्यादा था, बहुत ज्यादा था। इनफैक्ट सबका वही रहता है। मैंने घर पे ये बोल दिया था कि मेरे को अगर 30,000 से कम नौकरी मिलती तो मैं नहीं करूंगा। एक बहुत ही लोकल कंपनी था, मोटर बनाती थी, तो वहां पे ये सर आप बिलीव नहीं करेंगे 3,000 पर महीने बोल रहा था वो। बोला अभी ठीक है अभी कर लेते हैं, सीधा डिवाइड बाय 10 जस्ट गुना कम अभी कर लेते हैं। जो भी 5-6 दिन मैंने रहा वहाँ पे मैंने मोटर का पूरा प्रोसेस एटलीस्ट सीख लिया कि मोटर बनता कैसे, वाइंडिंग कैसे होता है, कॉपर का वाइंडिंग कैसे होता है, अंदर का स्टेटर पार्ट क्या होता है, रोटर पार्ट क्या होता है। पॉजिटिव मैंने लिया। फिर मुझे इलेक्ट्रोसम ग्रुप में मिला एट अ स्टाइपेंड ऑफ 11,500। फिर मुझे प्रोडक्शन में मिला, वहाँ का एक्सपीरियंस मैंने पता। उन्होंने बेसिकली ये देखते हैं कि अभी क्यूए में से प्रोडक्शन में जाना है तो डिपार्टमेंट ही पूरा अलग है, लेकिन सामने वाली कंपनी ने क्या देखा इसका लर्निंग एटीट्यूड है कि नहीं, उसने टेक्निकली जो काम किया उसने क्या काम किया और कितना कंट्रीब्यूट किया। तो मुझे वो 11,500 से 17,710 अभी ये अमाउंट याद आ गया मेरे को। फिर वो एक साल के बाद वो 10% इंक्रीमेंट हुआ, 20,000 पे का। फिर वो फिर से 4 महीने में उनको परफॉर्मेंस अच्छा लगा तो उन्होंने 2,000 और बढ़ा के दिए खाली मेरे लिए कंपनी ने। फिर मिलाग्रो में ज्वाइन हुआ तो आई गॉट पैकेज ऑफ 5.5 lakhs इंक्लूडिंग वेरिएबल एक ऐसी चीज है कि वो परफॉर्मेंस बेसिस पे भी होती है। अगर आप परफॉर्म करोगे तो इंडिविजुअल परफॉर्मेंस फैक्टर रहता है कंपनी में। अगर एमएनसी कंपनी में जाओगे, अगर आपका परफॉर्मेंस एक क्या रहता है, ईबीटा रहता है, अर्निंग बिफोर टैक्सेस एंड इनकम, अगर वो कंपनी का टारगेट अचीव हो जाता है, ठीक है, तो वो टारगेट अचीव होता है तो आपको वेरिएबल मिलने वाला है। लेकिन अगर आपका इंडिविजुअल परफॉर्मेंस 100% ज्यादा हुआ तो जितना आपका वेरिएबल होगा, अगर आपका परफॉर्मेंस 110% है तो जितना आपका एक्स अमाउंट है तो एक्स इंटू 110% आपको मिलेगा। अगर आपका परफॉर्मेंस 200% है तो 200 मिलेगा। हमको मिल चुका है, 200% भी मिला है, 140% भी मिला है और 110% भी मिला हुआ है। बाद में ये जो जर्नी था 5.5 से लेके 14 lakhs का, उसके बीच में काफी सारा स्ट्रगल था, सीखने से लेकर के, सॉफ्टवेयर लर्निंग से लेकर के। इनफैक्ट मेरा जो ये पोर्टफोलियो था ये असेंबली टूलिंग फिक्सर्स रिलेटेड टू इंजेक्शन मोल्डिंग। हम लोग क्या करते थे, मैं माई सेल्फ एंड असेंबली सुपरवाइजर, हम लोग डिजाइन करते थे लेकिन मालूम नहीं था कि डिजाइन चलेगा कि नहीं चलेगा। आपको शायद मालूम है हमने एक कूलिंग डिजाइन किया था, हमारा प्लेटन रहता है, कास्टिंग प्लेटन रहता है, मोल्डिंग मशीन में स्टेशनरी प्लेटन रहता है, अंदर बोर रहता है, 4 बोर रहते हैं, आगे पीछे से बुशेस लगते हैं, साइमल्टेनियसली असेंबल्ड हो। तो हमने कूलिंग तो डिजाइन कर लिया, लीड स्क्रू का साइज ले लिया, अंदर फिक्सर का भी डिजाइन कर दिया, लेकिन वो मालूम नहीं चल रहा था कि काम करेगा कि नहीं करेगा। तो हम लोग ने क्या किया, हमने ट्रायल एंड एरर मेथड किया, बिना सोचे समझे कैलकुलेशन किए, बेरिंग सिलेक्ट कर लिया, फिर बुश का फिक्सर डिजाइन कर लिया, लीड्स को डिजाइन कर लिया। एक असम्पशन कि भाई 32 mm डायमीटर है तो वो बेंड नहीं होगा। फिर उसको हमने डिजाइन में बताया
डिजाइन वालों ने बोला कि ये आपने किया तो है, लेकिन आप इसमें ये कैलकुलेशन और एक ऐड कर लो। तो हमने 32 से सर वो 40 mm का किया। तो 40 कैसे आया वो सर ने भी हमको बताया हुआ है। कैलकुलेशन बेसिकली वो शाफ्ट ही रहता है। अगर मैं 2 फिक्स एंड की बात करूं तो वो एज अ सिंपली फिक्स बीम काम करेगा। तो उस पर आप डिफ्लेक्शन बीच में एग्जैक्ट कैलकुलेट करके कि मैक्सिमम डिफ्लेक्शन बीच पे आएगा, ठीक है। टॉर्क वगैरह आपको पावर रहता है तो आप डायमीटर निकाल सकते हो कंसिडरिंग यील्ड, स्ट्रेंथ एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी। तो हमने वो किया तो वो हमारा सक्सेसफुल हो गया। तो ये सब चीजें मैंने आगे वाले कंपनी में बताया कि मैंने ये कैलकुलेशंस किए हुए हैं। इनफैक्ट मैं जो स्ट्रक्चर स्किड डिजाइन करता था उसमें मैंने ये बताया कि मैंने ये कैलकुलेशन किए हुए हैं। हमारा स्किड रहता है ये रूम से भी 2 गुना लंबा रहता है, 8 मीटर का स्किड रहता है, उसमें 7 मीटर का मशीन माउंट होता है। वो तो क्या आपने जो 8 मीटर का स्किड डिजाइन किया वो क्या पूरा 8 मीटर के ऊपर किया? नहीं, ऐसा नहीं होता है। इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में लेवल बेड्स रहते हैं, 8 से 10 क्वांटिटी के लेवल बेड्स रहते हैं। वो लेवल बेड इस हिसाब से दिए हुए रहते हैं कि हर एक लोड डिस्ट्रीब्यूशन उस पर हो। अगर मैं 25 टन मशीन की बात करूँ, पूरा वेट उसका 25 टन है, अगर उसमें 10 लेवल बेड है तो 10 लेवल बेड पे एस्टिमेट तो 2.5 टन वेट आएगा। तो 2.5 टन वेट बीच में, तो उसके मीटर इस साइड, तो उसके आप डिफ्लेक्शन कैलकुलेट करके आप पूरा उसका स्ट्रक्चर फाइंड कर सकते हो, स्ट्रक्चर का सेक्शन साइज क्या रहता है। तो जो चीज आप यहाँ पे करते हो आप उनको पोर्टफोलियो में डालने का ट्राई करो और रिकॉर्ड रखने का ट्राई करो। व्हाट यू थिंक, व्हाट यू डू, यू नीड टू रिकॉर्ड इट योरसेल्फ। Well, चलो, thank you. Thank you. Thank you and all the best.